A very good morning, 8th class. Today we will start our next chapter, Social Justice and the Marginalized. And this is the part of the civics. And here is given some learning objectives that we will read in this chapter. So these are, first one is given ki what is marginalization, and the second one, effects of the marginalization, and the next one, marginalized groups in India, और वो किन किन में है, Adivasis, minorities, scheduled castes and scheduled tribes. Okay, so before going about the chapter, let me understand ki what is the meaning of social justice and the marginalized. Okay, so let's start. So the first one is given social justice. तो the meaning of the social justice, everyone deserve equal, हर एक को equal इक्वालिटी मिलनी चाहिए। वो हर एक सोसाइटी में रहने वाला पर्सन बिल्कुल इक्वल है, चाहे उसका उस इकोनॉमिकली कहें या हम पॉलिटिकली कहें। ओके, और मार्जिनलाइज्ड मीन्स टू ट्रीट अ पर्सन या ग्रुप in a way that make them feel that they are not important, have no power. It means marginalized, उस ये वर्ड कब दिया गया है, ये हमारी सोसाइटी में जब हमें आज़ादी मिली थी उससे पहले से ही हमारी सोसाइटी में कास्टिज़म है, जिसमें कि कास्ट को उसके काम के आधार पर बांटा गया था, लेकिन उसके बाद में उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा और उनके साथ हर चीज़ों में उनको हर चीज़ों से उनको दूर रखा जाने लगा। सो मार्जिनलाइजेशन इज ए सोशल फेनोमेनन बाय विच अ पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल is accorded less importance and is pushed to the margin on the other words. Okay, और उनको अलग किया जाता था, segregated from the society, and they are not accepted by the society at large. So they are certain section of people that have remained discriminated and excluded from the mainstream of the society, and such groups are also known as the marginalized group. So marginalization is a social process by which some section of our society have remained confined to a lower social standing, और इन लोगों को डिनाइड दूर रखा जाता था एक्सेस टू देयर बेसिक राइट्स एंड रिसोर्सेज, और वो क्या क्या थे, लाइक एजुकेशन and so get little opportunity for development available to the rest of the society, and they are denied opportunities to mingle with the rest of the society. So here is given the definition of marginalization, so you will also the note down in your notebook. So here is, marginalization is a social process by which some section of our society have remained confined to a lower social standing. Okay, and the student, these section, और इस section में क्या include होगा, these section include क्या क्या है इसमें, women, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होता आ रहा है काफ़ी पीछे से, और शेड्यूल्ड कास्ट, और इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट है and scheduled tribes also. ये इसमें इसको डिवाइड किया गया है, द फिजिकली चैलेंज, द पुअर एंड द माइनॉरिटीज. ओके, द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन नो अबाउट द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस prevalent in India, and therefore they incorporated many provisions to alleviate the social and economic suffering of the marginalized group. So now here we are talking about who are marginalized. अब ये marginalized होते कौन है, देखो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से बताती हूँ। बहुत टाइम पहले जब हमारा देश गुलाम था, उससे पहले से ही हमारे सोसाइटी में कुछ लोगों को उसके काम के आधार पर बांटा गया था, कि यहाँ पर जो ब्राह्मण थे उनको एजुकेशन से रिलेटेड वर्क दिया गया था, और क्षत्रिय जो थे उनको
सोसाइटी के प्रोटेक्शन का वर्क था, और जो शूद्र और वैश्य थे उनको सोसाइटी के रख रखाव और उनके काम से रिलेटेड उनको उनसे काम दिए गए थे। अब ये इसी बेस पर सभी जो कास्ट थी वो काम करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस चीज़ को अलग वे में देखा जाने लगा, और जो रख रखाव और साफ सफाई का काम करते थे उनको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाने लगा, और उन लोगों को सभी चीज़ों से दूर रखा गया। और एक अनटचेबिलिटी भी उस टाइम बहुत शुरू हुई थी। इसका मतलब था कि ऐसे लोग आकर नॉर्मल लोगों की चीज़ों को टच नहीं कर सकते, उनको डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ फैलती जा रही थी, भेदभाव होता जा रहा था, और वो सभी लोगों के बीच में सोसाइटी में नहीं बैठ सकते थे और ना ही उनके चीज़ों को हाथ लगा सकते थे, और उनको बिल्कुल गांव से बाहर रखा जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीज़ें फैलती चलेगी, और फिर बाद में इन लोगों को क्या हुआ, बहुत सी चीज़ों से दूर रखा गया। साथ के साथ इनको एजुकेशन नहीं दी जाने लगी, इनका जो जीने का स्टैंडर्ड था वो भी बहुत लोअर होता चला गया, इनको फूड से, हेल्थ से, वेल्थ से, सब चीज़ों से इनको दूर रखा गया। ओके, सो बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो मेन चेयरपर्सन थे और जो हमारे उनके हेड थे, तब उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि हमारी सोसाइटी में ये सबसे मेन प्रॉब्लम है जो बढ़ती जा रही है, और जब हमें एक कंट्री को अच्छे लेवल पर लेके जाना है तो सबसे पहले जो यहाँ की जो बुराइयाँ हैं इनको दूर करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न डाले, और उन प्रोविज़न में सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किया सोशल जस्टिस और मार्जिनलाइज्ड ये क्या चीज़ें हैं, और इन की कैटेगरीज में कौन कौन लोग आते हैं, और ऐसे कौन से ग्रुप हैं और ऐसे कौन लोग हैं जिनको इसमें शामिल किया गया, और क्यों शामिल किया गया। पहले देखो, अगर किसी बुराई का अगर समाधान करना है तो सबसे पहले उस बुराई को देखा जाता है, उसकी मेन चीज़ कहाँ से शुरू हुई है वो चीज़ें पहले, और उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें डिस्क्राइब हैं, और फिर एक वर्ड जोड़ा गया मार्जिनलाइज्ड, और उस मार्जिनलाइज्ड में उन लोअर कास्ट को, स्पेशल वीमेन भी थी उसमें, शेड्यूल्ड ट्राइब से शेड्यूल्ड कास्ट थी, और कुछ और भी लोग थे, उनको उसमें डाला गया मार्जिनलाइज्ड में। फिर बाद में इनके साथ इनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या प्रोविज़न हो सकते हैं वो बाद में सारी की सारी चीज़ें ऐड की गई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले सोशल जस्टिस, अगर मार्जिनलाइज्ड कोई चीज़ दी गई है वो क्यों दी गई है। तो सोशल जस्टिस और मार्जिनलाइज्ड का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब बात यह कि हु आर मार्जिनलाइज्ड, इसमें कौन लोग आते हैं और कौन शामिल है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वीमेन, सोशल ट्राइब्स और सोशल कास्ट है, वे लोग इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन उनको किस बेस पर उनको डिफरेंट माना गया है, कैसे डिफरेंट है वो। सो हियर इज गिवन द मार्जिनलाइज सम ग्रुप्स ऑफ पीपल। सो डिफरेंट अगर यहाँ पर हम बात करें तो सम ग्रुप्स ऑफ पीपल आर मार्जिनलाइज्ड बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज और practice different religion to follow different custom as compared to the majority communities। जो मेजोरिटी में बहुत से लोग रहने वाले हैं उनके इन कंपैरिजन बिटवीन ये बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो कि इनकी लैंग्वेज अलग होती है, डिफरेंट रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं, इनकी कस्टम रहने का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग होता है। ओके, सो मार्जिनलाइजेशन कुड ऑल्सो be towards very poor people having a very low status होता है इनका सोसाइटी में। Thus we can say that ये इकोनॉमिक रूप से, सोशल और पॉलिटिकली एंड कल्चरल डिफरेंसेस और कॉम्बिनेशन of some of these differences cause marginalization of such people from the wider society। okay, now अब जो marginalization था उसके क्या इफेक्ट थे सोसाइटी में, क्या हुआ था उनके साथ, क्या होता था कि उनको डिनाइड, ये क्या है कि द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप था, आर डिनाइड एक्सेस टू वेरियस राइट अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज। इनको इन चीज़ों से बिल्कुल वंचित रखा जाता था, दूर रखा जाता था। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हाउसिंग एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा। अब नाउ रिजल्ट क्या हुए, इट रिजल्ट्स एन इंडिविजुअल्स और एक्सक्लूजन फ्रॉम द फुल पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी। okay, and these people also suffer at the hand
ऑफ मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और वे कौन थे मोर पावरफुल और डोमिनेंट? यहाँ पर रिचर, इनको ये थे, रिचर बोला गया है इनको, जो अमीर लोग थे, और बेटर एजुकेटेड, जिनके ओन लैंड, एजुकेशन से वो बहुत ही बेटर थे, और जिनके अपने ओन लैंड थे, अपनी ज़मीन थी। एंड रिसोर्सेज आर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, तो ये लोग क्या थे, यहाँ पर इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। ओके, सो नाउ वेरियस ग्रुप्स इन इंडिया विच हैव सफ़र्ड मार्जिनलाइजेशन। अब हम उस ग्रुप की बात करेंगे जो यहाँ पर सफ़र करती है, और वो कौन सी है? यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट। और जिनको दलित के नाम से भी जाना गया, दलित। ओके, इसमें ये लोग आते हैं। सो सोसाइटी इन इंडिया वाज कास्ट रिडन। द अपर कास्ट इज ह्यूमिलिएटेड द लोअर कास्ट। जो अपर कास्ट है वो ह्यूमिलिएट करती है किसको? लोअर कास्ट को। ओके, एंड people subjected them to discrimination, and the lower caste people were considered untouchables. अब इनको untouchables, जो कि अब नाउ कॉल्ड दलित के नाम से जाना गया है, were excluded from the mainstream, और the constitution refers to them as scheduled caste. अब देखो, अपर कास्ट ह्यूमिलिएट करती थी लोअर कास्ट को यहाँ पर, ओके, और लोअर कास्ट को हम किस नाम से बोलते हैं? दलित ना के नाम से। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जोड़ा गया है, तो इस लोअर कास्ट को, इस दलित को यहाँ पर एज अ शेड्यूल्ड कास्ट के करके उसको रेफर्स किया गया है। ओके, और द वर्स्ट वॉज, इसमें कौन कौन से आते हैं? फेट ऑफ लेदर वर्कर्स एंड मैनुअल स्क्वेंजर्स, जो लेदर का काम करते हैं और आसपास जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, मैनुअल स्क्वेंजर्स, हु वर ट्रीटेड एज आउटकास्ट्स। ओके, नाउ कास्ट बेस्ड मार्जिनलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ह्यूमन राइट्स इशू इन द वर्ल्ड टुडे। ये बहुत ही मेन सीरियस इशू है आज के टाइम में, और द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दलित इन्फ्लुएंसेस ऑल स्फीयर्स ऑफ देयर लाइफ। इट वायलेट्स देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स सच एज सिविल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स, एंड इट रिजल्ट्स इन द सोसाइटी। इसका रिजल्ट क्या हुआ इन द सोसाइटी में? एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन and physical segregation of their settlement, a common practice in the village, force them to live in the most unhygienic and uninhabitable conditions में वो रहते हैं। एंड लिटरेसी रेट उनका क्या है? बिल्कुल लो है। दलित का जो भी लिटरेसी रेट है वो बहुत ही लो है। जो इसमें ये जो दलित आते हैं, लिटरेसी रेट का मतलब है कि उनके पढ़ाई लिखाई की जो रेट है, कितने पढ़े लिखे हैं वो। तो लिटरेसी जो रेट है इनका बहुत ही लो है, और ये अनहाइजीनिक और अनइनहैबिटेबल कंडीशन में ये रहते हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी रहा नहीं जा सकता। ओके, सो दे हैव लिटिल एक्सेस टू हेल्थ केयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज, और इनको पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में भी बहुत ही कम इनको सारी के सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्ट देयर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। Okay, so now we are talking about the constitutional provisions for safeguard the interest of scheduled caste and tribes. अब उनके लोअर स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने के लिए और उनको बहुत से अच्छा जीवन देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सोचा गया क्या? आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रियलाइज्ड, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो मेकर्स हैं उन्होंने रियलाइज किया द बेसिक इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी, एंड विद द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर सोशल जस्टिस टू ऑल, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. It realizes
that the some situation applying some rules in the name of the equality can create inequality and can further harm the disadvantaged group. Okay, so with the inclusion of the following provision they have tried to undo the damage done to these groups of the century. ओके और इसमें जो फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे आर्टिकल 15 उनके लिए जोड़ा गया है। आर्टिकल 15 क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने स्पेशली इस ग्रुप की तरफ ध्यान दिया और उनको सच में रियलाइज हुआ कि इनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है बहुत ही लो है। इनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए उन्होंने आर्टिकल 15 में कुछ चीज़ें ऐड की और वो क्या थी कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, क्या प्रोहिबिट्स करता है? ये मना करता है, पाबंदी लगाता है एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, इस पर ये रोक लगाता है, इसको रोक लगाता है इस पर। किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किस पर बेस हो? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, creed, sex or means gender, male, female, something, or place of birth, etc. Okay, and on the other hand, the constitution also guarantee right to equalities. क्या गारंटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने? राइट टू इक्वालिटी। On the other hand, in keeping with the aim of social justice, the Constitution has made special provision, बनाए गए हैं for socially and economically marginalized group, socially भी and economically marginalized group के लिए। ओके, and various concession and reservation are given to the women। और इस आर्टिकल में क्या बताया गया है? रिजर्वेशन की बात की गई है यहाँ पर। रिजर्वेशन का मतलब है कि कुछ पोस्ट और कुछ सीट्स पर उन लोगों के लिए सीटें बनाए रखना, उन लोगों को सीटें प्रोवाइड करना, नौकरी देना। ओके, सो वेरियस कंसेशन और रिजर्वेशन आर गिवन टू, किन को दिया गया ये? वीमेन और शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को। ओके, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो इसमें मेंशन की गई हैं। बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो यहाँ पर मेंशन की गई है। बैकवर्ड क्लासेस भी में वो ग्रुप आते हैं जो कि बेसिक राइट से और जिनका लाइफ स्टैंडर्ड लो है, जो काफ़ी पीछे सोसाइटी में जा चुकी है, उनको भी बाकी की तरह इक्वल रखने के लिए, उनका लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर इन ग्रुप को रिजर्वेशन और कंसेशन दिया गया है। ओके, एंड डिसेबल्ड पर्सन ऑल्सो, और इसमें और क्या आएंगे? डिसेबल्ड पर्सन मतलब जो फिजिकली तौर पर जिनकी बॉडी में अपाहिज होते हैं, जो हाथ पैरों से अपंग हो,
आँखों से अंधे हों, जिनको दिखता ना हो, ब्लाइंड पर्सन, सो इनको डिसेबल्ड पर्सन बोला गया है। और इनको कहाँ रिजर्वेशन दी गई है, वेयर? सो इनको रिजर्वेशन कहाँ दी गई है, वेयर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जहाँ भी वो पढ़ने जाएंगे, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहाँ पर उनको सीट्स अलग से प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब होंगी, एंड लेजिस्लेटिव एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। ओके, लेजिस्लेचर का मतलब है कि जब भी यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो यहाँ भी इनके लिए स्पेशल सीट रिजर्व्ड की गई है। ओके, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज में भी, क्योंकि 1/3 सीट्स तो ऑलरेडी रिजर्व की गई है फॉर वीमेन। Now this one also, the second provision also given in the Article 16. And what is the given in the Article 16? It guarantees equality of opportunity for all citizens in matters of employment. किस चीज़ की गारंटी देता है? Guarantees equality. Where? Opportunity for all citizens in the matter of employment. रोजगार के लिए, जॉब के लिए, अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। किसके अंडर में आते हैं ये? अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, एंड वन मोर थिंग, व्हाइल इट प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन, और ये प्रोहिबिट्स करता है, पाबंदी लगाता है, मना करता है, किस चीज़ को? डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को। और वो कहाँ पर? इन एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। किस चीज़ पर? एम्प्लॉयमेंट पर, जो कि नौकरी दी जाए, मना करता है कि ना तो वो कास्ट पर बेस हो, ना रिलीजन पर बेस हो। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, देन रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी सिटीज़न को एम्प्लॉयमेंट, जॉब देने से पहले उनकी इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और ना ही मेंशन किया जाएगा। ये सारी की सारी बातें आर्टिकल 16 में दी गई है। मना किया गया है डिस्क्रिमिनेशन को, कि इन एम्प्लॉयमेंट ऑन द शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, एंड इट ऑल्सो अलाउस रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट। और इसमें भी जो पोस्ट है एम्प्लॉयमेंट में, जो भी पोस्ट हैं जो निकलती हैं, उसमें भी रिजर्वेशन मिलता है। किसको? वीमेन को, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑल्सो। ओके, द सुप्रीम कोर्ट इन 1992, अब एक बात ध्यान से आप देखेंगे यहाँ, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट कब? 1992 में अप्रूव्ड ऑफ 27% इन्होंने अप्रूव्ड किया। क्या? 27% पोस्ट
in government. Service to be reserved किसके लिए? अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC. Okay, other backward classes. Is that clear? And now the next one is Article 17. And also what is given in the Article 17? The Constitution states that untouchability has been abolished and has been declared as a punishable offense. और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया गया? जो अनटचेबिलिटी है, has been abolished and declared. क्या डिक्लेयर किया गया? एज अ पनिशेबल ऑफेंस, कि अगर किसी को हम अनटचेबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं तो वो पनिशेबल होगा और कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी. ओके, एंड द यूज ऑफ पब्लिक वेल्स, टैंक्स. पब्लिक वेल मतलब जो कुएं होते हैं, पब्लिक वेल्स. पहले वहाँ पर इन लोगों को जाने से रोक दिया जाता था. एंड टैंक्स, टेम्पल्स एंड पब्लिक प्लेसेस इज ओपन टू ऑल. ये सभी के लिए बराबर खुले हुए होंगे. टैंक्स, टेम्पल एंड पब्लिक प्लेस इज ओपन टू ऑल. ओके, ये सभी के लिए खुले हुए होंगे. और बाय प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और कलर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सोशल इक्वालिटी. And the next one is also given, the Article 46. What is the given in the Article 46, students? It provides that state should take care of the educational and economic interest of weaker section. कि जो states होती है वो specially provide करेगी जो हमारी society के weaker section, जो बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, कुछ ग्रुप में रहने वाले जो लोग हैं बहुत ही वीक है, वो कैसे, चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे वो इकोनॉमिक ग्रुप से हो, उन पर क्या करेगी? वो उनको बहुत बेहतर तरीके से उनकी देखभाल करेगी और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी जो उनको दी जानी चाहिए. और किनको? स्पेशली पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस. इज दैट क्लियर? नाउ हम अब यहाँ तक इस चैप्टर को रीड करेंगे. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड द रिमेनिंग टॉपिक्स. और रिमेनिंग टॉपिक्स क्या होंगे? एफर्ट्स मेड फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, कि अपलिफ्टिंग इन शेड्यूल्ड कास्ट को ऊपर उठाने के लिए, इनके स्टैंडर्ड को अच्छा बनाने के लिए क्या एफर्ट्स दिए गए हमारी गवर्नमेंट ने, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. अब तक यहाँ पर आप इस वीडियो को अटेंटिवली, you have to watch this video attentively and read the topic. In next video we will read the remaining topic also. So have a nice day. Till then keep reading. We will meet in next video.